हरे कृष्ण हरे कृष्ण नमः भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया दहीनाम अंतर हवायानुपलखवर्त्मने. Do you hear me? Yes, yes, yes. Yes. भूयो नमः सद्वृजिनश्चिदे अथ तामसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमंस्याश्रमे व्यवस्थितानां मनोरुग्यदासुषे. नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुजोगिनां निरस्त साम्याति स्वयं राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः. जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. विचक्षणा जच्चरणप्रसदनात् संगं विदुष्योभयतन्तरात्मनाः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. तपस्विनो दानपराजसस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षमं न विन्दन्ति विना जदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभिरकङ्काजवनः खसादयः जन्ये च पापादुपाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः. स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयः तपोमयः गतबलिकैरशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्. श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्ध्याङ्पतिर्लोकपतिर्धरापतिर्पतिर्गतिश्चान्धकप्रशिषात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सताङ्पतिः. जजङ्ग्रविध्यानसमाधिधौतया ध्यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन् चेत् कवय यथा रुचं समे मुकुन्द भगवान् प्रसीदताम्. प्रचोदिता जेन पुरा सरस्वती वितन्वता दश सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत क्रीडास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्. भूतेर्महद्भिर्ज इमाः पुरो विभुर्निर्माय सेति तदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडात्मकः षोडं प्रशिष्ट भगवान् वचांसि मे. नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याजनमुखं एतदेवात्मवराजन् नारद पृच्छते वेदगोर्वसाक्षात् जदा हरिरात्मनः. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. Congratulations and my all reverence to the Vaishnavas and devotees of the audience connected to this online devotional congregation. Also, my respectful salutations to the great Bhagavad scholars. These three sadhus have embarked upon a magnanimous mission to teach Hari Prem to us. They have been urged by the Lord to preach or to distribute Prem Dhan, the greatest wealth to us, and they have been doing so with much alacrity or enthusiasm and in a very punctilious manner, or say carefully. Marvelous and most delightful are the presentation of the most sacred messages of the Bhagavatam. We have been blessed to listen to the message of the Bhagavatam twice daily. As we drink the Bhagavatamrita, not by sipping as a payer, but by licking as a layer to obtain maximum release from it, we drink it to the brim and don't leave any remnant of it. So I would request the Acharyas to kindly unveil the meaning of the technical terms, especially that are associated with Veda, Vedanta, and other Indian philosophical systems whenever they come across in the text or as preparatory knowledge to understand the complex or critical or abstruse concepts that are found in the text. Acharya Hare Krishna Ji was discussing that day in clear terms on identity indifference or Achintya Bhedavet theory of the Vaishnavas, or we may say Chaitanya Mahaprabhu or Baladev Vidyabhushan. That is good. Likewise, Acharya Jayakantji was also citing Visishta Advaita doctrine of Sri Ramanuja Acharya, the Sasasesi theory, Sri Bhashya, etc. in course of his talks in the last morning. But that remained unintelligible to us. Though we have hazy knowledge of the Vedantic doctrines, say Advaita, Visishta Advaita, Dvaita, Dvaita Dvaita, or Pushti Marga of Ballabhacharya, etc., expounded by the Acharyas like Shankara, Ramanuja, Madhav, Nimbarko, Baladev Vidyabhushan, etc. Its recapitulation is recapitulation in course of the relevant discussion is necessitated when you come across such points of discussion in course of your Bhagavad text. They are all bhakti exponents on Vedanta. Their thoughts will definitely provide extra impetus and innovative twist to your discussion, and eventually that can also make us practice bhakti in a more efficacious manner.
Second thing to request, all the elements of Hari Bhakti with categorical details may kindly be explored from the Bhagavatam and other scriptures related to it and be discussed with relevant topic. Since you all three have such versatility, especially on Sanskrit language, literature, grammar, on Indian philosophy, we fervently expect such things to be disseminated to wider spectrum of audience associated to this Satra. On your part, no further perseverance or strain on this score is needed. Whatever you already know, or you know through your usual study, experience, and relation, that will be sufficient. Again, it is heartening to find among the diligent listeners many active Sanskrit scholars and devotees like Honorable Narayan Upadhyay, who have proven erudition on the Bhagavatam, and nothing in this discussion escapes his penetrative mind on the various anecdotes of the Bhagavatam. I am actually inspired by his queries. We shall remain grateful to those Sanskrit scholars who can critically appreciate the evening talks at the end in a more advanced manner. I would prefer to quote the famous couplet of Robert Browning, the English poet, that is, God is in his heaven, all's right with the world. But on our part, Lord Krishna, our God, has already descended on this earth and has surprised everybody by his wonderful feats. The Trinavarta episode is to be discussed this evening. Now I solicit Honorable Acharya Narottam Sir to kindly resume his most valuable talk to sanctify our minds, to sanctify our lives as usual. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जय श्री राधे। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की अशेष कृपा से आप जैसे वैष्णव जनों का, सुधी जनों का संगम प्रतिदिन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे समस्त वैष्णव जना, सुधी जना, बुध जना, संत जना एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सज्जनों के चरणों में बार बार प्रणति निवेदन करता हूं एवं सभी को अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। जैसे हमारे अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री पंडा बाबू जी ने हम लोगों को उत्साहित किया। आप हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। आपने जैसे मार्गदर्शन किया हम लोगों को, और क्या क्या करने से आप लोगों को और सुख मिलेगा और हम लोग भी और आनंदित होंगे, उसका आपने एक मार्गदर्शन किया। लेकिन ये भी पंडा बाबू को मालूम है कि हम लोगों की जो अध्ययन है उसकी भी कोई सीमा होती है। आप जानते हैं संस्कृत शास्त्र अत्यंत विस्तृत शास्त्र है। इसमें विभिन्न दर्शन, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद क्या नहीं है। तो हम लोग यथासाध्य आप लोगों की कृपा से कोशिश करते हैं जहाँ तक संभव हो, और उसका पूरा उत्साह भी आप लोग देते हैं। इसलिए सभी श्रोताओं के चरण कमलों में फिर से प्रणाम निवेदन पूर्वक, जैसे आपने कहा कल की कथा जहाँ पर रुकी हुई थी वहां से आगे की कथा का शुभारंभ करेंगे। तो भगवान सकटासुर का उद्धार करने के बाद
तृणावर्त का उद्धार करने के लिए प्रस्तुत हैं, तैयार हैं। तृणावर्त भी तैयार हैं अपना उद्धार भगवान से कराने के लिए। तो उसी प्रसंग में हम लोग एक श्लोक का अध्ययन सामान्य रूप से, मूल रूप से किए थे, उसकी व्याख्या के आधार पर भी श्रवण करेंगे। तो श्लोक यह था, एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशुर्बूढुं नसेः गिरिकूटवत्। अर्थात यशोदा मैया एक दिन भगवान को अपने गोद में लेकर के दुलार रही थी, स्नेह कर रही थी, एवं भगवान भी अपनी मैया का वात्सल्य प्राप्त करके अत्यंत विभोर हो रहे थे। तो इसी बीच मैया को यह लगा कि हमारे गोद में कोई भारी भरकम पदार्थ बैठ गया है, उपस्थित हुआ है। अर्थात कन्हैया का वजन तो इतना कभी नहीं था, कन्हैया तो अभी नन्हा सा है, छोटा सा है, तो उसके गोद में बैठने से हमको क्यों भार होता। शायद कुछ भूतावेश, प्रेतावेश या कोई कुछ दुर्घटना हो गई है, पहले जैसे पूतना जैसी कोई घटना शायद होने वाली है, या सकटासुर का आक्रमण जैसे शायद कोई घटना होने वाली है। ऐसा समझ करके माता ने समझ लिया कि हमारे गोद में तो पहाड़ का एक शिखर आकर के बैठ गया है। गिरी कूटवत, गिरी का कूट, तो कूट का अर्थात अग्रभाग, तो गिरी कूटस्य इव शिशो हो। अब भगवान इतने भार होने लगे, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ का अग्रभाग उनकी गोद में है, इसलिए उनको संभाल नहीं पाए। इच्छा न होते हुए भी, अपनी इच्छा के विरोध में भी आपने भगवान को नीचे स्थापित कर दिया। गरिमाणं शिशोः बोढुं गिरिकूटस्य इव शिशोः गरिमाणं बोढुं न सेहे। तो इस पद्य का अध्ययन हम लोग लालयंती में श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे थे, मुखचुंबनम स्तनपानम च। तो इसकी बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। अब उस व्याख्या का हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, एकदा, तो श्लोक में तो कहा नहीं गया कि यह लीला कब घटित हुई। पहले भी हम लोग श्रवण किए थे, पूतना उद्धार लीला भगवान के अवतार के 7वें दिन में हुई थी, एवं शकटभंजन लीला त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः, अर्थात भगवान जब 3 महीने के उम्र के हुए थे उस समय शकटभंजन लीला घटित हुई थी। अभी एकदा श्लोक में मूल में नहीं कहा गया है कि यह लीला कब हुई, तो उस बात को समझाने के लिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, एकदा एकाब्द वयसी वृत्ते सती, अर्थात भगवान को जब 1 साल का उम्र हो गया, अर्थात भगवान कुछ बड़े हो गए हैं, अभी 1 साल के हो गए हैं। एकदा एकाब्द वयसी वृत्ते सती, ये कैसे मालूम हुआ? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, एकहायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्तृणावर्तम अहन कंठग्रहातुरम। यह भी श्लोक पहले जैसे बताया गया है कि गोवर्धन धारणा लीला के बाद भगवान के ऐश्वर्य को गोपवासी ब्रजवासी सब प्रत्यक्षतः देखते रहे। इससे पहले भगवान ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया था वह गुप्त रूप से या अप्रकट रूप से भगवान ने अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित किया था। लेकिन जब गोवर्धन
धारण लीला घटित हुई, उस समय भगवान ने अपना ऐश्वर्य को प्रत्यक्षतः सबके सामने प्रकाशित कर दिया। तो उस समय सब ब्रजवासी जब घर वापस गए तो सबके चित्त में यह आया, ये कैसे संभव है, इतना नन्हा सा बालक 7 साल का उम्र और 7 दिन तक गिरि गोवर्धन को उठा करके रखना और इंद्र के कोप से हम लोगों को बचाना, ये कोई सामान्य शिशु नहीं है, ये नंद बाबा का बालक नहीं हो सकता है। ये तो कोई अति आश्चर्य देव हैं। इसलिए सब ब्रजवासी जाकर के नंद बाबा से कहने लगे कि हे नंद बाबा, यह बालक, यह आपका बालक नहीं है, यह आपका पुत्र नहीं है, ये कोई देवता ही है जो इतना सारा अत्याश्चर्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो उसी प्रसंग में सब ब्रजवासी भगवान की तत्पूर्ववर्ती लीलाओं का वर्णन करते रहे। तो उसी प्रसंग में इस लीला का, इस तृणावर्त लीला का भी ब्रजवासियों ने नंद बाबा के यहाँ निरूपण किया, नंद बाबा को इस लीला का स्मरण दिलाया। तो उस समय यह कहा गया, एक हायन आसीन, जब भगवान एक हायन थे, हायन शब्द का अर्थ है वर्ष, साल, तो 1 साल के जब भगवान थे और जो आसीन थे, आसीन अर्थात बैठे हुए थे, क्योंकि मैया ने अपने गोद से तो उतार करके भगवान को पास में बैठा दिया। ह्रियमाणो विहायसा, एवं उसको आकाश में जब तृणावर्त उड़ा करके ले जा रहा था, तब तृणावर्तम अहन दैत्येन ह्रियमाण, तृणावर्त दैत्य के द्वारा भगवान चुरा लिए जा रहे थे गगन मार्ग से। तब भगवान ने क्या किया, तृणावर्तम अहन, कैसे, कंठ ग्रहातुरम, भगवान ने उसके गले को खूब जोर से पकड़ रखा था। तो उस भगवान की पकड़ से वो बड़ा व्याकुल हो गया, अर्थात उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई एवं वह श्वास प्रश्वास करने में असमर्थ हो गया एवं वहां से नीचे गिर पड़ा। तो कंठ ग्रहातुरम, कंठ ग्रहण से आतुर व्याकुल होकर के तृणावर्त के भगवान ने वध कर दिया। तो इस प्रसंग को जब कहा गया तब कहा गया एक हायन आसीन, इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं और अन्य व्याख्याकार भी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सभी कह रहे हैं यह लीला घटित हुई भगवान का उम्र जब 1 साल का हुआ था। एक हायन आसीनो ह्रियमाणो विहायसा इति अग्रे तनोक्ते है, अर्थात यह बात आगे 26वें अध्याय में बताई जाएगी। आरोहम उत्संगम, आरोह शब्द का अर्थ है उत्संग अर्थात क्रोड, गोद। आरोहम उत्संगम, आरूढ़म तम लालयंती, लालयंती पहले तो हम लोग श्रवण किए थे, मुख चुंबन कर रही थी मैया, स्तन्यपान करा रही थी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भुजाभ्याम उत्तोलन आंदोलनादि भी उल्लासयंती, भगवान को थोड़ा सा ऊपर उठा लेती थी एवं ऊपर उठा करके हवा में भगवान को हिलाती थी, डुलाती थी। तो यही लालयंती शब्द का अर्थ है। भुजाभ्याम उत्तोलन आंदोलनादि भी उल्लासयंती, भगवान अति आनंद से मैया के हाथ में बैठ करके विहार कर रहे थे, मैया हिला रही थी, उनको ऊपर उठा रही थी। गिरिकूटवत, गिरि श्रृंगस्य इव, कूट शब्द का अर्थ है श्रृंग, गिरि श्रृंग की तरह शिशोह गरिमाणम बोढ़ुम, बोढ़ुम माने वहन करने में न सेहे, अर्थात नहीं कर सके, वहन करने में असमर्थ हुई मैया यशोदा। आगमिष्यंतम तृणावर्तम, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भगवान अभी गोद में
मैया का प्यार प्राप्त कर रहे थे, मैया का वात्सल्य का आनंद ले रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? अपना भार गिरी श्रृंग की तरह भार भगवान का कैसे हो गया? ये भगवान के संकल्प के बिना तो हो नहीं सकता है। तो भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों किया, इसकी चर्चा करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, आगमिष्यंतम तृणावर्तम समातृकमेव अमुम हरिष्यंतम आलक्ष्य। अर्थात भगवान सर्वज्ञ हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद, सही सर्वज्ञ सर्वविद। भगवान को मालूम है कि अभी तृणावर्त हमारा वध करने के लिए आ रहा है, तो हम अभी मैया के गोद में हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा वध करने के लिए हमको उठा लेने के साथ कहीं मैया के साथ हमको उठा न ले, मैया को कहीं उड़ा न ले, मैया को कहीं गगन में अपहरण करके कंस के पास ना ले लें, तो मैया तो घबरा जाएगी। मैं क्या, मैं तो अपना उसके साथ देख लूंगा जो होगा तृणावर्त के साथ, लेकिन मैया बेचारी घबरा जाएगी और भय से शायद मैया का कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो इस मैया के प्रति कृपा करते हुए आगमिष्यंतम तृणावर्तम समातृकमेव अमुम हरिष्यंतम आलक्ष्य। भगवान समझ गए ये मैया के साथ ही हमको उड़ा लेगा, इसीलिए मातु यशोदाया क्लेश माभूत। अगर ऐसा होगा तो मैया को बड़ा कष्ट होगा, मैया को बड़ी असहज बोध होगा, मैया की बड़ी समस्या होगी। इसीलिए इति ऐश्वर्य शक्तिया, भगवान की जो ऐश्वरी शक्ति है, ईश्वरत्व रूप सामर्थ्य है, जो सर्वकर्ण सामर्थ्य है, उस शक्ति के कारण तत् उत्तराय भारम कल्पयामास। क्योंकि जब भार बढ़ जाएगा तब मैया अपने आप हमको गोद से उतार देगी और तृणावर्त हमको ले जाएगा, तो मैं तृणावर्त के साथ जो उचित होगा ऐसा व्यवहार करूंगा, मैया मेरी बच जाएगी। मैया अगर बची रहेगी तो ऐसे कई बार हमको मैया के गोद में बैठ करके स्तन्यपान करने का, मैया के चुंबन प्राप्त करने का, मैया के हाथ में डोलने का मौका मिलता रहेगा। हमारी मैया का अकल्याण नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया। तद उत्तराय भारम कल्पयामास इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, किंचिदपि उपरि तोलयन मां व्योमने खेलितु मना यतोस्म्यहम इत्यमुस्य किल सत्य कामतैव आनयत तृण विवर्तनासुरम। श्री चक्रवर्ती पाद एक पद्य में इस लीला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तृणावर्त को किसने ले आया, क्योंकि भगवान के संकल्प से ही तृणावर्त आया है। तृणावर्त के संकल्प से तृणावर्त नहीं आया है, या कंस के संकल्प से तृणावर्त नहीं आया है। क्यों? भगवान को मर्त्य लीला, भौम लीला करनी है और इस लीला से सभी को आनंदित करना है। इस लीला से पूतना, सकट और तृणावर्त आदि को सद्गति देनी है, इसलिए भगवान के संकल्प से ही तृणावर्त आया। तो किंचित पिपरी तोलय अम्ब माम व्योमनि खेलितु मना यतोस्म्यहम। हे अम्ब, हे मैया, आप हमको हाथ में लेकर के उठा करके डुला रही है, थोड़ा सा और उठाओ, थोड़ा सा और उठाओ, ऐसे भगवान के मन में संकल्प आ रहा था। किंचित अपि ऊपरी तोलयन, तोलय, हे अम्ब हमको थोड़ा सा और ऊपर उठाओ। माम व्योमनि खेलितु मना, अर्थात मैं चाहता हूं आकाश विहार करना, गगन विहार करना चाहता हूं, व्योम विहार करना चाहता हूं, थोड़ा सा और उठाओ। इतना तो गोद से हमको हाथ में ऊपर उठा करके हिला रही हो, थोड़ा सा और हाथ उठा करके हिलाओ। किंचिदपि उपरि तोलय अम्ब माम व्योमनि खेलितु मना यतः अस्मि अहम। मैं आकाश विहार करने की इच्छा करता हूं, इसलिए हमको और उठा करके तोलाओ।
इत्यमुष्य किल सत्य कामता। तो यह भगवान की एक बार संकल्प जब भगवान का हो गया, और हम लोग जानते हैं कि भगवान सत्य संकल्प हैं, एक बार किसी चीज का संकल्प कर लें तो वह संकल्प भगवान का पूरा होता है। अरे जीव की क्या दुर्दशा है, हम जीवन में इतना इतना संकल्प करते हैं कि कोटि कोटि जन्म में भी हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। एक दिन में हम लोग जितना संकल्प करते हैं वो सारा जन्म में भी उसका पूरा नहीं कर सकते हैं। अब भगवान के प्रत्येक संकल्प पूर्ण होते हैं क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। तो इस तरह का संकल्प जब भगवान के चित्त में आया कि मुझे व्योम विहार करना है, मुझे आकाश विचरण करना है, तब उस संकल्प से ही तृणावर्त वहां आकर के उपस्थित हो गया। इत्यमुष्य किल सत्य कामता एव, भगवान की जो सत्य कामता है वही आनयत, किसको? तृण विवर्तनासुरम, तृणावर्त को इस यहाँ चक्रवर्ती पाद तृण विवर्तन कह रहे हैं, एक ही बात है। अर्थात तृण का जो आवर्त है, अर्थात उसको जो आवर्त की तरह जैसे जल में आवर्त होता है, उसी तरह से हवा में भी जब आवर्त होता है उसी को विवर्तन कहते हैं। तृण विवर्तनासुर, तृण विवर्त अर्थात तृणावर्त को भगवान के सत्य संकल्प ने वहां से उनको ले आया। तो यह चक्रवर्ती पाद का खना है। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है। हाँ, तो यहाँ हमारे जो वैष्णवानंदनिकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये कुछ थोड़ा सा इसमें रस और डालना चाहते हैं, हम लोगों को और रसास्वादन कराना चाहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। मातृभुजा आंदोलना अभ्युदित बियत क्रीडेच्छा, अर्थात मैया ने जब भगवान को हिला रहा था तो भगवान की इच्छा बढ़ गई कि मुझे थोड़ा सा और भी आकाश में विचरण करना चाहिए। और ऊर्ध्व स्थित्या स्वक्रीड़ा स्थानानि दिदृक्षौच, हाँ श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु उसमें और रस डालना चाहते हैं। भगवान व्योम विहार, आकाश विहार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान को समस्त ब्रजमंडल में घूम घूम करके समस्त लीलाएं करनी है, विविध लीलाएं करनी है। तो भगवान की के मन में यह संकल्प आया, भगवान की इच्छा हुई कि मैं जहां जहां अपनी लीला यहाँ करूंगा तो उस जगह को मैं अभी से देख लेना चाहता हूँ, उसका आकलन, उन समस्त स्थानों का आकलन मैं अभी से करना चाहता हूँ। तो वो कैसे संभव है? भगवान तो अभी बालक हैं, रथ में चढ़ करके सकट में बैठ करके जा करके लीला स्थलों का दर्शन कर नहीं सकते हैं। तो एक बार जब गगन में चले जाएंगे वहीं से ब्रजमंडल के समस्त लीला भूमियों का, उनके इच्छा जहां जहां लीला करने की है उस स्थानों का वे निरीक्षण कर पाएंगे। तो ऐसा संकल्प जब भगवान के हृदय में आया तब तृणावर्त वहां करके उपस्थित हुआ। ऊर्ध्व स्थित्या स्वक्रीड़ा स्थानानि दिदृक्षौच सती, दिदृक्षौच तस्मिन् सती तत्संपादक तृणावर्तागम, तो तृणावर्त आकर के भगवान की इस कामना को पूर्ण किया। व्योम विहार एवं उसके साथ साथ भावी जो लीलाएं हैं उनका जो जो स्थान है उस स्थानों का दर्शन। तेन में समातृकस्य उन्नयने मातुः क्लेशः स्यात् अतः तद अंकार पृथक श्यामिति वांछति सती गरिमोदयात्। हाँ, तो ये जो गुरुत्व भगवान में उत्पन्न हो गया ये भगवान के संकल्प से। और देखिए, और जब तृणावर्त भगवान को उठा करके गगन में ले रहा है तो वो गुरुत्व अभी नहीं है, क्योंकि अगर भगवान अपना गुरुत्व को इतना बढ़ा लेते तो तृणावर्त उनको कैसे उड़ा के ले सकता था। तो भगवान के जो सत्य संकल्पता है या भगवान की जो लीला शक्ति है उसके कारण मैया के गोद में पहले तो उनका भार बढ़ गया, उसके बाद जब मैया ने उनको नीचे स्थापित कर दिया, उसके बाद तृणावर्त उनको जब लेके जा रहा है तब भगवान ने अपना जो स्वाभाविक वजन है अर्थात भार को भगवान ने नहीं बढ़ाया। फिर जब तृणावर्त को गगन में वध करने का संकल्प हुआ तब भगवान ने अपना भार बढ़ाया। ये सब भगवान की लीला शक्ति के कारण हो रहा था। तो इस बात को श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि देखिए, पहले भगवान
जब सप्तम दिन में हुए थे तब पूतना उद्धार लीला, अब त्रैमासिक हुए थे सकट भंजन लीला, 1 साल के हुए तब तृणावर्त उद्धार लीला। तो भगवान तो इतने सीधे साधे नहीं है कि एक एक लीला को इतनी देर से करें, क्योंकि तो लीलामय है, लीला रसिक हैं, और लीला करने के ही धरा में उनका अवतार हुआ है। तो 3 महीने से लेकर के अब 9 महीने तक क्या भगवान घर में चुपचाप ऐसे बैठे रहे होंगे? हमारा भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है कि वो चुपचाप इतना दिन बैठे। तो इस बात को आचार्य लोग हमारे सनातन गोस्वामी पाद इसका वर्णन करने करने के लिए वो कह रहे हैं कि यह जो लीलाएं श्रीमद् भागवत में वर्णित हुई हैं, पूतना उद्धार लीला, उसके 3 महीने के बाद सकट भंजन लीला, उसके फिर 9 महीने के बाद अर्थात 1 साल पर जो तृणावर्त उद्धार लीला, यह तो भगवान के अनंत लीलाओं का दिंग मात्र है। जैसे स्थाली पुलाक न्याय है, अर्थात जब भात पकाते हैं हम लोग तो उस भात में से 1-2 भात को देखा जाता है कि पूरा हंडी का भात पका है कि नहीं। उसी तरह से सभी भात को सभी चावल को हाथ में लेके नहीं देखा जाता है कि पका हुआ कि नहीं है। तो वो जैसे उसको स्थाली पुलाक न्याय कहते हैं। तो उसी तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को जिन चरित्रों का वर्णन किया है वह स्थाली पुलाक न्याय है, क्योंकि भगवान अनंत लीला हैं, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान और चुपचाप बैठने वाले भगवान भी नहीं है, कई लीलाएं किए होंगे, उन सब का वर्णन क्यों नहीं हुआ उसका कारण श्री सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं। यद्यपि सदा अशेष भगवत्ता प्रकटन परस्य, भगवान का स्वभाव है या भगवान के जो विविध शक्तियां हैं और जो ऐश्वर्य शक्ति है या जो माधुर्य शक्ति है, लीला शक्ति है, वे शक्तियां सब समय चाहती हैं कि भगवान में इन लीलाओं का बार बार प्रकाश हो। और भगवत्ता प्रकटन परस्य श्री कृष्णस्य तद वर्ष मध्ये अन्यान्यपि विचित्राणि पराणि अद्भुतानि आचरितानि संभवन्ति। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं यह संभव है क्योंकि 3 महीने से लेकर के 9 महीने तक भगवान कभी भी चुपचाप नहीं बैठे होंगे। उनकी यह जो दिव्य लीला है, सकट भंजन लीला, तृणावर्त लीला, इस तरह की कई लीला भगवान किए होंगे। लेकिन यथा कहते हैं कि हाँ ये किए होंगे, ये तो एक संभावना है, मैं उम्मीद करता हूँ। अर्थात सनातन गोस्वामी पाद कहता है मेरी तो मन यही कहता है, मेरी बुद्धि यही कहती है कि भगवान और लीला कहते होंगे, क्योंकि इतना मात्र नहीं है। यथा कंस प्रहित श्रीधराख्य छद्म विप्राभिभव चातुरी मयादीनी अपि श्री माथुर लोक प्रसिद्धानि संति। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जिन लीलाओं का वर्णन है उससे बढ़ करके कहीं बहुत सारे लीलाएं हमारे रूप गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी महाराज एवं अन्य गोस्वामी, हमारे संप्रदाय के और अन्य संप्रदाय के जितने भी भक्त लोग हुए, सूरदास महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं अन्य संप्रदाय के सब आचार्य, उन लोगों ने भी विविध लीलाओं का भगवान वर्णन किया है। और श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं कि ब्रज में यह एक भी लीला, एक ऐसी लीला है जिसका भारी प्रचार है, तो वो है श्रीधराख्य छद्म विप्र लीला। अर्थात श्रीधर कोई छद्म वेशी ब्राह्मण थे, उनके साथ भी भगवान ने कुछ लीला की थी। तो यह एक उदाहरण है। अर्थात इस तरह की कई लीलाएं हुई होंगी और हुई हैं। ये लीलाएं भी अभी तक गाई जाती हैं विविध भाषा में और विविध आचार्यों के द्वारा। तो अब श्रीधराख्य छद्म विप्र लीला क्या है, तो हमने मुझे तो मालूम तो नहीं था पहले, तो हमने महाराज जी से, हमारे किशोर कृष्ण महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी इसका दिग्दर्शन करिए, श्रीधर छद्म ब्राह्मण की क्या लीला है। तो आपने हमको एक उसका विवरण दिया, उसको भेजा। तो मैं उनके चरण कमलों में कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं उस लीला में से जो थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ उसका वर्णन करने की मेरी इच्छा है। तो वो ऐसी लीला है, कंस ने देखा कि पूतना को भेजा तो पूतना विफल रही,
यह जो प्लानिंग थी वह सफल नहीं हुई। तो उसके सकटासुर को भेजा गया, वो भी नहीं हुआ। तृणावर्त को भेजा गया, यह भी नहीं हुआ। तो कंस को यह मालूम था कि नंद बाबा अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं एवं ब्रजवासी सब ब्राह्मण भक्त हैं। यशोदा मैया भी अपने स्वभाव के अनुरूप ब्राह्मण के भक्त हैं। तो किसी ब्राह्मण को क्यों न पटिया जाए, अर्थात किसी ब्राह्मण को क्यों न ऐसा बोध दिया जाए कि आप जाकर के कृष्ण का, नंदनंदन का वध करो। ऐसी दुर्बुद्धि कंस के हृदय में आई। तो आपने श्रीधर ब्राह्मण को बुलाया। अपने राजधानी में बहुत ब्राह्मण होते होंगे, उसमें से श्रीधर ब्राह्मण शायद कुछ लोभी होंगे, कुछ होंगे। कंस को तो मालूम पड़ गया होगा कि ऐसा कोई ब्राह्मण ढूंढो जो हमारे कुचक्र का हिस्सा बन सके, हमारी जो मंद उद्देश्य है उसको पूरा करने में जो तैयार हो, ऐसा ब्राह्मण आप लोग ढूंढ करके लाइए। तो श्रीधर महाराज जी को ढूंढ करके लाया गया। तो श्रीधर बाबा ने क्या किया, श्रीधर ब्राह्मण ने क्या किया, कंस की बात पर राजी हो गया। कहा कि हाँ ठीक है, हम आप जैसे करेंगे, आप अगर दान दक्षिणा ठीक ठाक देंगे तो हम इतना करके आ जाएंगे, क्या है समस्या। तो ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण जाकर के नंद बाबा के भवन में पहुंचे। तब भगवान नंद बाबा के घर में तो ऐसे ही समय हमेशा उत्सव बना रहता है। तो नंद बाबा के घर को पहचानने में उनको कोई समस्या नहीं हुई। घर पहुंच गए और ब्राह्मण का इतना सुंदर वेश बनाए थे, जैसे कोई मेकअप लेकर के आया हो। तो बहुत सुंदर ब्राह्मण का दिव्य वेश बनाए, ड्रामा में जैसे कोई जाता हो वैसे ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आप आए थे। तो नंद बाबा तो भोले भाले हैं और ब्रजवासी भक्त हैं, इसलिए भोले भाले हैं। आप लोगों ने ब्राह्मण का स्वरूप देख करके उनका आदर सत्कार किया, उनको दंडवत प्रणाम आदि किया। और सबसे उनके दिल में इच्छा थी कि जब ब्राह्मण भगवान स्वतः उपस्थित हुए हैं, अयाचित रूप से घर में आए हैं, तो इनका आशीर्वाद हमारे लाला को प्राप्त होना चाहिए। तो सीधे ब्राह्मण को लेकर के भगवान जहाँ विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे, वहां लेकर के पहुंचा दिए। और ब्राह्मण भी यही चाहते थे कि सीधे कृष्ण के साथ ही संबंध हो। तो वैसे ही हुआ। तो नंद बाबा लेकर के भगवान के शयन कक्ष में ब्राह्मण को पहुंचा दिया। तो ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दिया। तो नंद बाबा भी खुश हुए और यशोदा मैया भी खुश हुई। उसके बाद तो ब्राह्मण का अभ्यर्थना करने के लिए यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने कहा कि आप थोड़ा सा विराजमान होइए और हम लोग आपके लिए उत्तम अन्न की व्यवस्था करते हैं, आप भोजन करिएगा और आप एक दो दिन यहाँ रहिए, हमारे पुत्र को आशीर्वाद कीजिए, हमारे गृहस्थाश्रम को पवित्र कीजिए। इस तरह के अनुरोध पर ब्राह्मण बहुत खुश हो रहे थे कि मैं जैसा सोच रहा था उससे और भी बढ़ करके यहाँ तो हमारा आदर हो रहा है। तो जब कुछ ब्राह्मण भगवान के लिए कुछ भोजनादि बनाने की बात आई, तो ब्राह्मण भगवान ने कहा कि ना, मैं आप लोगों के बनाया हुआ अन्न स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो स्वपाकी हूँ और स्वपाकी मैं इतना ज्यादा स्वपाकी हूँ कि हमको अलग एक जगह चाहिए जहां मैं अपना भोजन पका सकूं और भोजन करते समय किसी की नजर उस पर ना पड़े, कोई देख ना पाए। तो कहा कि ठीक है, सब खुश हुए और बहुत अच्छे नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, इनके लिए व्यवस्था की जाए। तो नंद बाबा के यहाँ जहाँ साक्षात लक्ष्मी ठाकुराइन सेवा करती हों, तो वहाँ क्या अभाव है। तो उनको उस तरह की व्यवस्था मुहैया करा दी गई। तो एक बड़ा भवन जैसा था, वहां पर उनको विश्राम कराने के लिए कहा गया। वहां भी पाठशाला थी, आप की व्यवस्था सब हो गई। उस कमरे को या उस भवन को सफाई करने में रोहिणी मैया और यशोदा मैया खुद जाकर के वहां सब व्यवस्था कर रही, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति इतनी श्रद्धा और इस लोभ से कि इनका आशीर्वाद हमारे पुत्र को मिलेगा, हमारा पुत्र चिरायु होगा, हमारा पुत्र का कल्याण होगा, इस आशा से दोनों मैया सब व्यक्तिगत रूप से अर्थात स्वयं वहां उस घर की सफाई करने लगे। तब जब सफाई हो गई तब फिर तब ब्राह्मण बाबा को सभी ने प्रणाम किया कि आप अपना यहाँ बिस्तर उस्तर में विश्राम करिए, हम आपकी समस्त व्यवस्था करते हैं।
तो अब दोनों भगवान उनके साथ थे, यशोदा मैया के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, रोहिणी मैया के साथ भगवान बलराम थे। तो वो ब्राह्मण, वो तो कुचक्री ब्राह्मण था, वो तो दुष्ट स्वभाव का था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए जो अ, रंधन की वस्तुएं हैं, चावल दाल वो सब ले आइए, लेकिन आप ये दोनों बच्चों को यहाँ रख जाइए, क्योंकि मैं कुछ इन बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं कुछ पुरस्चरण करना चाहता हूँ, कुछ मंत्र जप आदि करके इनका कल्याण विधान करना चाहिए। ये सुन करके यशोदा मैया, रोहिणी मैया तो एकदम गदगद हो गई, गदगद हो गई कि इतना बढ़िया ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए उनको, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर कितनी प्रीति है ये तो हम लोग पहले देखे थे। विप्रा मंत्र विदो युक्ता तैर्या प्रोक्ता तथा शिशः तानि फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम्। तो ब्राह्मण के प्रति जो प्रीति थी उसके कारण आपने भगवान को एवं भगवान बलराम को वहां रख करके यशोदा मैया, रोहिणी मैया अन्यत्र चली गई, ब्राह्मण भगवान की सेवा के लिए जो उपकरण की आवश्यकता है उसका संग्रह करने के लिए। तब ब्राह्मण सोचे यह तो मेरा परम लाभ हो गया, मैं जिस कामना से आया था वह अभी पूर्ण होने वाला है। तो वो भगवान को ले करके भगवान का गला टीप करके मारना चाहता था, गला दबा करके, भगवान की गला को दबा करके वो मारना चाहता था। तब भगवान समझ गए कि हाँ, ये भगवान तो पहले ही समझते थे। तो भगवान ने क्या किया, अपने हस्त को, अपने हाथ को वो ब्राह्मण के मुख में प्रवेश करा करके, जैसे केसी राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अपना हाथ को उसके मुख में प्रवेश करा करके उसके श्वास मार्ग को रुद्ध कर दिया था, उसी तरह से भगवान ने अपना स्वरूप को थोड़ा सा बढ़ा करके अपना हाथ को उस श्रीधर विप्र के गले में प्रवेश करा दिया, एवं उसका जो स्वर यंत्र है उसको भगवान ने नष्ट कर दिया। एवं उसके जो शरीर, उसको मारा तो नहीं, ब्राह्मण को नहीं मारते हैं भगवान, लेकिन वो दुष्ट ब्राह्मण था, इसलिए उसको दंडित करने के लिए, उसकी शिक्षा देने के लिए उसके जो स्वर यंत्र है या गले में जो यंत्र है, अर्थात गले की जो व्यवस्था है, श्वास और प्रश्वास की व्यवस्था, उसको तितर बितर कर दिया भगवान ने, उसको नष्ट कर दिया। वो ब्राह्मण वहां से भागा भागा, यशोदा मैया, नंदा एवं रोहिणी मैया के आने से पहले ही ब्राह्मण वहां से भाग के चला गया। तो इस तरह की लीलाएं ब्रज में प्रसिद्ध है। इस तरह की अनंत लीलाएं, कई लीलाएं प्रसिद्ध हैं जिसका उल्लेख नहीं हो पाया। तो ये सब लीलाएं भी भगवान करते रहे, लेकिन लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी को मौका नहीं था, या श्री परीक्षित महाराज जी के पास भी इतना अवसर नहीं था कि भगवान के विविध लीलाओं का वे श्रवण कर पाते। तो उसी बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, यथा कंस प्रहित श्रीधर से छद्म विप्र श्रीधराख्य छद्म विप्राभिभव चातुरी मयादीनि अपि श्री माथुर लोक प्रसिद्धानि सन्ति, तथापि सर्वत्र अप्रसिद्धत्वात् किं वा श्रोतुः श्री परीक्षितः सप्ताहावधि जीवितत्वेन स्वल्पकाले तत्तत् अशेष कथना सिद्धेः मुख्यानेव श्री सुखदेव अकथयत। अर्थात ये सब लीलाएं इतनी प्रसिद्ध नहीं है। दूसरी बात है, जिनके लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया जा रहा है, जिस परीक्षित महाराज जी के कल्याण के लिए यह कथा श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही जाती है, उनके पास इतना समय कहाँ है कि भगवान के अनंत लीलाओं का वर्णन किया जाए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी चुन चुन करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करते हैं जिनको सुन करके परीक्षित महाराज जी का अत्यंत कल्याण हो। इसलिए समस्त कथाएं नहीं कही गई हैं। इसलिए इतना बड़ा गैप, 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक, 1 साल तक की और जो लीलाएं घटित हुई हैं उनका विवरण श्री सुखदेव गोस्वामी नहीं दे पाए। इस बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। किंच दूसरी बात है, इन श्रीमद् भागवत में, जैसे इससे पहले हमारे महाराज जी ने एक बार बताया था, दूसरे महाराज जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आपने बताया था कि यहाँ पर लीला का जो क्रम है
अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीलाओं का जो क्रम है, उसमें क्रम में जो आगे पीछे का क्रम है वह क्रम सर्वथा सही हो ऐसा भी नहीं है। क्यों? विभिन्न कारण से जब सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं तो उनके चित्त में कभी कौन सा भाव, कभी कौन सा भाव आ रहा है। इसलिए लीला के क्रम में व्यतिक्रम देखा जाता है। अर्थात जो लीला पहले घटित हुई हो उसका विवरण कहीं कहीं पहले दिया जाता है, और जो पहले घटित हो उसका विवरण बाद में दिया जाता है, ऐसा भी है। उसका उदाहरण देकर के श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, किंच एकाब्दे शिशु प्रायो लोके पादचंक्रमणं दृश्यते तत्र च बलिष्ठस्य तन्मध्ये घटते तथापि रिंगणलीलायाः प्राक् अस्याः कथनम् अद्भुतलीला प्रसंगात् किंबा तत्तलीलानाम् उत्तरोत्तर माधुर्यातिशयापेक्षया। सनातन गोस्वामी पाद का कहना है, देखिए अभी जिस लीलाओं का हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, यह जो तृणावर्त लीला है, यह 1 साल के बाद घटित हुई है। और इसके बाद अष्टम अध्याय में भगवान की रिंगण लीला अर्थात जब घुटन के बल पर बच्चे चलते हैं तो उसको रिंगण लीला कहते हैं। हिंदी में उसको रेंगना कहते हैं। ये रिंगण शब्द से हिंदी में रेंगना ऐसा आया है। घुटने के बल पर चलने की जो लीला, अर्थात भगवान हाथ एवं पैर से जब चलते हैं, रिंगण लीला, उस लीला का वर्णन बाद में हुआ है, अर्थात अष्टम अध्याय में हुआ है। अभी हम लोग सप्तम अध्याय में हैं और सप्तम अध्याय में तृणावर्त लीला का वर्णन है। श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है, 1 साल में बालक तो चलने का क्षम हो जाता है, अर्थात चलने में समर्थ हो जाता है। उसको रिंगण लीला में जाने की जरूरत नहीं होती है। रिंगण में अर्थात पैर घुटने के बल पर चलने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका यह मतलब हुआ, और श्री सनातन गोस्वामी पाद यह कह रहे हैं, 1 साल के बाद तो बच्चा खड़ा हो ही जाता है और अपने पैर से चलने लगता है। लेकिन अगर वह बच्चा थोड़ा सा पुष्ट हो और हृष्ट हो, अर्थात अनुकूल परिवेश में वर्धित हो, तो उसका चलना, पैर पर चलना उससे पहले भी हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि यह जो रिंगण लीला जिसका वर्णन अष्टम अध्याय में है वह पहले घटित हुई एवं यह तृणावर्त लीला बाद में घटित हुई। लेकिन वर्णन के क्रम से श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस लीला का पहले वर्णन किया, तृणावर्त लीला का, एवं रिंगण लीला का बाद में निरूपण होगा। वो ऐसा क्यों? तो सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अद्भुत लीला प्रसंगात, अर्थात जब सकट भंजन लीला आई तो उस तरह की यह लीला है, अर्थात असुर वध लीला है। तो सकट भंजन लीला के बाद तृणावर्त लीला उनके चित्त में आ गई एवं यह आकाश में जाकर के भगवान को आकाश में उड़ा करके ले रहा है वध करने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के चित्त में इस लीला के प्रति अत्यंत अद्भुत होने की भावना थी। शायद उसके कारण आपने इस लीला का पहले वर्णन किया। एक समाधान यह है। दूसरा समाधान है जो और अच्छा लगता है समाधान। देखिए, इस लीला में माधुर्य के साथ ऐश्वर्य का बड़ा भारी मिश्रण है। क्यों? भगवान को अभी स्तन्यपान माँ करा रही है, खिला रही है, गोद में ले रही है, ये तो वात्सल्य है। लेकिन भगवान जो तृणावर्त का वध करते हैं, उसके गले को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है और गगन विहार करते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य की लीला है। ये ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य लीला है। और जो रिंगण लीला है, घुटने के बल पर चलने की जो लीला है, वो शुद्ध वात्सल्य लीला है। तो ऐश्वर्य लीला से भगवान का यह वात्सल्य लीला वो मधुरतर है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है, लीला के वर्णन में जो क्रम है वो मधुरता को धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अर्थात पूतना वध लीला से सकट लीला और मधुर है, सकट लीला से तृणावर्त लीला मधुर है, उसके बाद रिंगण लीला मधुरतर है और रासादी लीला तो मधुरतम है। तो इस क्रम से माधुर्य के कारण
अर्थात माधुर्य को नजर में रखते हुए जिस जिस लीला में मधुरता ज्यादा है उस लीला को बाद में वर्णन करना श्री सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं। ऐसा होता है, भोजन के समय हम लोग जब भोजन करते हैं तो मधुराति मधुर चीजें सब धीरे धीरे आती हैं। तो उसी तरह से यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए भूखे बैठे हैं, तो उनको श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत दिव्य भोजन करा रहे हैं भगवान की लीला कथा का श्रवण कराने के माध्यम से। तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विचक्षण हैं, भगवान के परम भक्त हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, तो उनको मालूम है लीला का आस्वादन कैसा होना चाहिए। इसलिए वो संभल संभल करके धीरे धीरे लीला सुंदरतर मधुरतर आस्वाद्यतर होता जाए, इस तरह से लीला के क्रम से वर्णन करते हैं। तो यह एक सिद्धांतगत बात है, इसको श्री सनातन गोस्वामी ने प्रकाशित किया है। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशुर्गूढुं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगताम् आसकर्मसु भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगताम् आसकर्मसु। तो शिशो गरिमाणम न सेहे, अर्थात अपने पुत्र के भार का सहन मैया नहीं कर पाई। तो नहीं कर पाई तो मैया ने क्या किया, किया क्या? तो कह रहे हैं भूमौ निधाय तम गोपी, अर्थात अपने पुत्र को, अपने श्री कृष्ण भगवान को भूमौ निधाय, वो भूमि में रख दिया, गोद से उतार करके अपने पास में भूमि में भगवान को बैठा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, अर्थात उस भार से पीड़ित होकर के, अर्थात इतना कम भार नहीं था कि यहाँ वो संभाल लेती, अर्थात पीड़ा हो रही थी उनके पैर को। अर्थात जब संभालना असंभव हुआ तब जाकर के भगवान को भूमि में स्थापित कर दिया, नहीं तो भगवान को गोद से उतार करके भूमि में रखने का कोई कारण नहीं था। तो भार पीड़िता एवं विस्मिता गोपी यशोदा मैया तम श्री कृष्णम भूमौ निधाय, भगवान को रख दिया। तो उसके बाद क्या करना था मैया को? महापुरुषम आदध्यो, अर्थात भगवान का स्मरण करने लगी। ये क्या हो गया? क्योंकि इस तरह की विपत्तियां हमारे घर में आती हैं, बार बार आती हैं। देखिए वर्णन नहीं है लेकिन बार बार तो आती होंगी, क्योंकि कंस तो नहीं छोड़ने वाला है और भगवान को तो अपनी लीला सर्वांग सुंदर करना है, लीला का विस्तार करना है। तो इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं है या उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन उनके घर में इस तरह की विपत्तियां, इस तरह की लीलाएं तो बार बार होती होंगी, बार बार विपत्तियां आती होंगी। इसलिए महापुरुषम आदध्यो, फिर से आपने भगवान का स्मरण किया, हे भगवान ये क्या हो रहा है, बार बार हमारे घर में ही ऐसा क्यों हो रहा है। महापुरुषम आदध्यो जगताम आस कर्मसु, एवं अपने कर्म में लग गई। तो अपने क्या कर्म में लग गई और महापुरुष का आध्यान क्यों किया, और जगताम आस कर्मसु, जगताम कर्मसु आस, ये सब चीजों का क्या अभिप्राय है, इसको हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका के आधार पर पढ़ेंगे। तो संभ्रमेण विस्मिता इति भूमौ निधाय तंगोपि विस्मिता भार पीड़िता। संभ्रमेण विस्मिता, अर्थात भय के कारण, अर्थात अपने पुत्र के प्रति जो ममता है उसके कारण उनको भय हो गया कि फिर से कोई ऐसी दुर्घटना शायद होने वाली है जो अब तक घटती रही। संभ्रमेण विस्मिता इति मत शिशो अयम आकस्मिक भार कुतस्त्यः, ये कैसे हो गया, हमारा इतना छोटा सा बच्चा है तो इसका भार इतना कैसे बढ़ गया। मत शिशो अयम आकस्मिक भार कुतस्त्यः, कुतस्त्यः का मतलब कहां से आ गया, न जाने
कस्यचित बालग्रहस्य आवेश जनितः वेति। कोई बालग्रह, कोटरा, रेवती, पूतना आदि जो बालग्रह हैं, उनका फिर आवेश हो गया क्या, उनका आक्रमण हो गया क्या हमारे बालक के ऊपर। इस तरह से शंकया जगतां महापुरुषम, अर्थात इस संपूर्ण जगत के जो महापुरुष हैं, अर्थात श्री नारायणम आदध्यु, अपने इष्ट देव जो भगवान नारायण हैं, जो समस्त जगत के मालिक हैं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे भगवान की चिंता, भगवान का ध्यान मैया करने लगी। वैकुंठ दिशम ऊर्ध्वम आलोक्य, श्री चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर मार्मिक वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यशोदा मैया के पास भगवान का स्मरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो मैया कह रही हैं वैकुंठ दिशम ऊर्ध्वम आलोक्य, अर्थात वैकुंठ दिक, अर्थात वैकुंठ की ओर, अर्थात ऊपर के मुख करके, ऊपर की ओर दृष्टि करके, ऊपर की ओर अपना मुखमंडल को प्रसारित करके श्री मैया कहने लगी भगवं स्वयैव दत्तोयम सुतः, आपने हमको कृपा करके इस पुत्र को दिया है। इस उम्र में हम अपुत्र थे, आपकी कृपा से हमने इस लाला को प्राप्त किया है। भगवं त्वयैव दत्तः अयम सुतः त्वयैव पालनीयः, इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। मैं मैया भले हूं और हमारे पति नंद बाबा उसके पिता भले ही हैं, लेकिन हम इसकी सुरक्षा कहां तक कर सकते हैं। हे भगवान, आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो हमारा पुत्र का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए त्वयैव पालनीयः इति ध्यानेन उवाच इत्यर्थः, अर्थात भगवान का ध्यान करती हुई मैया ने इस तरह से भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान इस बच्चे की सुरक्षा आप ही करें। ततश्च महापुरुषम आदध्यो, किसका महापुरुष है? जगतां महापुरुषम, अर्थात जगत के हर्ता कर्ता जो भगवान नारायण है उनको आदध्यो, उनका ध्यान करने लगे। और जगतां आस कर्मसु, इसका क्या मतलब है? श्री चक्रवर्ती बात है ततश्च व्यग्रा तत्स्वस्थ्ययनाद्यर्थम कर्मसु विप्राह्वानादिषु आस, अर्थात भगवान के कल्याण के लिए, भगवान की स्वस्ति विधान के लिए, भगवान का कल्याण विधान के लिए ब्राह्मणों को बुलाना एवं अन्य जो भी संभव था भगवान की सुरक्षा के लिए, वो सब करने लगी। यही है कर्मसु आस। ये नहीं कि भगवान को उतार करके जा करके संसार गृह कर्म करने लगी, ऐसा नहीं है। इस श्लोक में जो जगताम आस कर्मसु, तो जगताम महापुरुषम अर्थात समस्त ब्रह्मांड के जो सृष्टा पालक किंवा संहारक भगवान नारायण है, उनका ध्यान किया। इस व्याख्या के साथ साथ दूसरे व्याख्याकार वे दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। जगताम इस संबंध का, जगताम इस शब्द का संबंध भार के साथ है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के आधारभूत हैं, उनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है। तो जगतां भार पीड़िता, क्योंकि जगत का भार भगवान के उदर में है और जगत का भार मैया कैसे सहन कर सकती है, इसलिए भार के कारण पीड़िता, इस तरह की भी का भी अर्थ किया जाता है। अर्थात जगतां भारेण पीड़िता विस्मिता च, और समस्त जगत का भार, भगवान ने जब संकल्प किया कि मैं अपना भार को बढ़ाऊं, तो भार तो भगवान का भार होता है, समस्त जगत तो उनके अंदर है, उनके उदर में है, इसलिए वो समस्त जगत का भार आ गया। तो इस भार को सहन नहीं कर पाई, तो आश्चर्य में पड़ गई। तो जगताम भारेण पीड़िता विस्मिता च, और जगताम शब्द का एक दूसरा भी अन्वय करते हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद, जगताम मध्य कर्मसु, अर्थात संसार में जितने कर्म होते हैं, अर्थात उनके जो दैनंदिन कर्म हैं, उस कर्म में लिप्त हुए। जगतां मध्य कर्मसु, पता नहीं इसका क्या अर्थ है, लेकिन ऐसा ही आपने कहा
कि जगताम भारेण विस्मिता, यह एक अर्थ है। जगताम कर्मसु आस, यह एक अर्थ है। और जगताम महापुरुषम श्रीमन नारायण श्री चक्रवर्ती पाद का यह अर्थ है। तो इस तरह के कर्म में वह व्यस्त हो गई। तो इस तरह का श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ बता रहे हैं। भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषम आदध्यो जगताम आस कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। तो तृणावर्त जो है वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब कृष्ण को मैं पाऊंगा, कृष्ण को कब मैं अकेले प्राप्त करूंगा, उनको हरण करके उसको उड़ा के लेकर के कंस के पास पहुंचा दूंगा या उनका वध कर दूंगा। इस चक्कर में वह था। तो वो मौका उसको मिल गया। मैया के गोद से जब भगवान जमीन पर आ गए, मैया ने जब उनको भूमि पर बैठा दिया, तब तृणावर्त नामना दैत्य, जिस दैत्य का नाम तृणावर्त है, वो कंस के द्वारा प्रेषित था एवं अर्भकम जहार, भगवान को हरण करके ले गया। अब भगवान को हरण कैसे किया और मैया की क्या दशा हुई, उसके बाद समस्त गोपपुर में क्या हाहाकार मच गया एवं तृणावर्त का कैसे वध हुआ एवं भगवान ऐसे दुष्टों का जब वध करते हैं तब किस तरह से उनको सद्गति देते हैं, इन समस्त लीलाओं का वर्णन आगे की कथाओं में होगी। तो आज का तो इस चरण का अंतिम दिन है। कल से हमारे श्रीपाद जयकांत प्रभु जी, हमारे आदरणीय मित्र, कल से वे भगवान की इस कथाओं का निरूपण करेंगे। आप अत्यंत रसिक वैष्णव संत हैं, तो आप भगवान की कथाओं का जब वर्णन करते हैं, अत्यंत हृदय दे करके वर्णन करते हैं, तो इन कथाओं का वर्णन, इन लीलाओं का श्रवण करने के लिए हम उनसे श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। तो आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं उनका कल के कथा के लिए निमंत्रण करता हूं, अभिवादन करता हूं। एवं आज की कथा, आज तक आप लोग जो हम लोगों की कथा का श्रवण कर रहे हैं एवं उत्साहित कर रहे हैं एवं बार बार अपनी सलाह भी दे रहे हैं, उस सब के लिए सभी संत जनों के, सभी श्रोतृ जनों के, सभी महात्मा जनों के चरणों में वंदना निवेदन पूर्वक आज की कथा की विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः। नमस्ते नमो नमः। नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणति पूर्वक, प्रणाम पूर्वक आज की कथा के प्रसंग में कुछ कहने से पूर्व ये मंगलाचरण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। सचमुच गुरुदेव, आप तीनों गुरुदेव हमारे लिए साक्षात माधव स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, क्योंकि आप हम जैसे गूंगे के मुख में भी बोलने की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। आप ऐसा अमृत का स्वाद कराते हैं कि हमारी जीवा कुछ ना कुछ अपलपाने लगती है, कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो उठती है। और आज के प्रसंग में गुरुदेव ने क्या रोचक, कितना सौम्य भाव के साथ हमें न केवल रसपान कराया। अगर हम केवल हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ में तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जब आपने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद,
श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी के प्रसंगों को साथ में जोड़ते हुए, उनकी व्याख्या को जोड़ते हुए आपने बताया कि माता अपने बच्चे को उछाल रही हैं, और जैसे ही उछाला, उछालने के साथ वो भार बढ़ गया, और वो पर्वत शिखर के समान कितना भार बढ़ गया। और उस भार बढ़ने का उद्देश्य, क्योंकि वो संकल्प आपने बताया कि संकल्प किया गया था कि व्योम विहार करके मैं अपनी लीलाओं के लिए वो स्थली, कितना सुंदर ढंग से गुरुजी ने प्रतिपादित किया कि उन लीला स्थलों का अवलोकन तो करूं मैं, जो मैं अपने आप तो नहीं कर सकता। छोटे से बच्चे को ले कौन जाएगा, कौन इतना दिखाएगा। और उसको आपने बड़ी सरलता से, आपने हमारे अंदर के अज्ञान का एक कोना भी खाली नहीं छोड़ा, उसमें ज्ञान का प्रकाश गुरुदेव आपने ऐसे भर दिया। 3 महीने से 12वें महीने पर सीधे हम क्यों पहुंच गए, कितना सुंदर आपने व्याख्यान दिया कि थाली पुलाकर न्याय, एक चावल का दाना देख लेने भर से हमें समस्त क्रीड़ाओं का, लीलाओं का सहज ही आभास हो जाता है। और फिर जब आपने श्रीधर पाठक जी का प्रसंग सुनाया कि ब्राह्मण भक्त तो हम हैं, और हमें ब्राह्मण भक्त होना ही चाहिए, क्योंकि साक्षात उनमें ब्रह्म का वास होता है। गुरुदेव आपने उस लीला को बता करके हमें न केवल ब्राह्मण सत्कार के प्रति गदगद भाव सिखाया, आपने हमें यह भी बताया कि ब्राह्मण को, चाहे वो दुष्ट भाव लेकर आया है, लेकिन ब्राह्मण वध उचित नहीं है। वो लीला प्रसंग में ही आपने सहज ही हमें सिखा दिया। और जब आप व्याख्या करते हैं, आप बताते हैं कि माधुर्य का क्रम देखिए, कथा का व्यतिक्रम, लीला का क्रम का व्यतिक्रम हो सकता है, क्योंकि कहीं माधुर्य, कहीं वात्सल्य, कहीं ऐश्वर्य, ये लीलाओं का प्रसंग जैसे जैसे भाव आवेश सुखदेव जी का आता गया, वैसे वैसे कथा का प्रसंग चलता गया। और हम जो सामान्य मनुष्य हैं, जो गृह कार्य नाना जंजालों में उलझे हुए हैं, वो आपके मुखार विंद से जब कथा का रसपान करते हैं, तो लगता है कि जीवन कितना सफल और सार्थकता की ओर अग्रसर हो रहा है। और गुरुदेव ने जब दूसरे श्लोक में बताया, पहले तो आपने एकदा, एकदा का अर्थ 1 साल होगा, हम कभी नहीं सोच सकते थे। और जब आपने हमें भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, कितना सुंदर आपने कहा, एक एक शब्द की व्याख्या करके कहा। महापुरुष, महापुरुष मादध्यौ जगताम आस कर्मसु, किन कामों में लग गई, स्वस्थ आदि कामों में लग गई, ईश्वर के स्मरण में लग गई। हे ईश्वर, तुम्हारी दी हुई संतान तुम्हारे ही द्वारा रक्षित होनी चाहिए। ये हमें प्रकारांतर से हमें शिक्षा है कि केवल सब कुछ छोड़ करके हमें ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से बस हम जब लग जाते हैं, तो ईश्वर की जिम्मेदारी है, वही हमारा कल्याण करते हैं। गुरुदेव, इस मुख से मैं कितना कहूं, मैं सभी सभी श्रोतृवृंद की ओर से आपके चरणों में केवल और केवल प्रणति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम ही कर पाऊंगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास सब शब्द नहीं है, शब्द व्यापार नहीं है। हम केवल आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप हमारे लिए कितना अमृत, समुद्र मंथन के बाद भी शायद वो अमृत जो प्राप्त हुआ होगा, वो इतना स्वादिष्ट शायद ही रहा होगा, जो आपका ज्ञान अमृत हमें निरंतर मिल रहा है, तीनों गुरुदेव की कृपा से मिल रहा है। तो हम सभी श्रोतृवृंद की ओर से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करता हूं कि हम इसी तरह रसपान करने के लिए कल पुनः सम्मिलित होंगे ठीक 7 बजे, यदि भी सुबह 5:30 बजे, फिर सुबह 8 से 9 बजे, और फिर रात्रि में हमारे लिए गुरुदेव ने ये अमृत वर्षा का जो संकल्प लिया हुआ है, वो सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ी कृपा है। तो हम कल पुनः जुड़ेंगे, और इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।